Hello students, how are you all? Hope all of you are fine. Welcome all my dear and loving students to the grammar session of standard 4th from your ACE grammar book. In this session, I Shama Khan is going to teach you chapter number 11 pronouns. So कौन सा चैप्टर हम सीखने वाले हैं आज? चैप्टर नंबर 11 pronouns. So pronouns you might have heard these words many times. So what are pronouns? Pronouns are the words that are used in place of nouns. तो उसके लिए हमें एक बार nouns को रिवाइज करना पड़ेगा. What are nouns? Nouns are the name of person, place, animal और things. तो उसकी जगह जो हम वर्ड को यूज़ करते हैं they are called pronouns. Example of pronouns will include I, me, we, us, you, he, him, she, her, it, they, them, mine, ours, yours, his, hers and theirs. So all this will come in pronouns. आप ये समझोगे कि ऐसे ही कैसे क्या होता है. तो let's understand this chapter very well in detail by reading the examples. तो if we'll read the examples तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा कि where the use of pronoun is there. So here we'll read the sentences. She brushes her teeth. तो यहाँ पे any girl is there. Suppose Maya is there. तो here Maya brushes her teeth. तो Maya तो हमने क्या यूज़ किया? Maya की जगह we have used the pronoun she. And her, that is also a pronoun. So if the sentence is Maya brushes her teeth, then here it is that she brushes her teeth. This book is mine. किसकी बुक है? Mine, मेरी. So mine is a pronoun. They play in the rain. So many children are there. Suppose Ramesh, Mahesh, Ali, all are there. तो उन सब के जगह हमने जो वर्ड को यूज़ किया है that is they. तो they play in the rain. चलो एक बार और समझ लेते हैं with the visuals ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए. Now this is the girl Maya. तो हम कहेंगे what will say Maya brushes her teeth. अब वही सेंटेंस को हमको प्रोनाउन यूज़ करके करना है तो क्या करेंगे? शी ब्रशेस हर टीथ. नहीं तो दिस वे वी कैन से माया इज़ ए गर्ल, शी ब्रशेस हर टीथ. माया इज़ ए गर्ल, शी ब्रशेस हर टीथ. नेक्स्ट वन, दिस बुक इज़ माइन. सो माइन इज़ अ प्रोनाउन. नेक्स्ट वन सेंटेंस वॉज देयर. दे play in the rain. So suppose this is Mahesh, Ramesh, Ali, Akbar, Suresh, all are different name of the persons. Now this all are name of the person. अगर हमको हमके साथ में हमने क्या यूज़ किया? They play in the rain. Specific name we have not mentioned. सबका डिफरेंट नेम इज़ देयर और सबको हमने क्या साथ में यूज़ किया है? दे प्ले इन द रेन. क्लियर? ओके, चलो लेट्स सी. नाउ हियर इट इज़ देयर द वर्ड्स इन बोल्ड आर प्रोनाउंस. जो वर्ड बोल्ड में थे क्या क्या थे? शी, हर, माइन, दे. ऑल दिस वर्ड्स are pronouns. So what we'll say?
Pronouns are the words that we use in place of noun. What are pronouns? Pronouns are the words that we use in place of noun. Pronouns क्या है? Pronouns are the words that we use in place of nouns. First sentence, Sweta said, I am tired after the marathon. मैराथन लंबा रेस होता है तो said I यानी क्या हुआ? Pronoun. Means Sweta is tired after the marathon. Sweta said, inverted comma में है इसलिए personal pronoun, I am tired after the marathon. Raj said, will you come to the fair with me, Rohan? राज ने रोहन से पूछा, will you, सामने वाला पर्सन, सेकेंड पर्सन, will you come to the fair with me, रोहन? रोहन से राज पूछ रहा है. The tree is full of apples. ये पूरे एप्पल का ट्री है. So the tree is full of apples. We should pick them soon. Otherwise they will, what happened? Otherwise they will rot. वो सड़ जाएंगे. So what is the sentence? The tree is full of apples. अब किसे करना है? We. कौन करेगा? हम सब. तो we should pick them. किसे? Apples को. We should pick them soon. Otherwise they will rot. वो क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे. So here all the pronouns we, them, they is used. Neha told me that we are going for a play. नेहा ने किसे कहा? मुझे. me. That we, हम सब, were going to for a play. Neha said me that we were going for a play. So here also pronoun me and we are used. एक बार और थोड़ा सीख लेते हैं कि where it is there, where the words are used. Now the kinds of pronoun. तो यहाँ पे क्या है? possessive pronoun. तो possessive means what? वर्ड से हमें पता चलता है possession यानी which belongs to someone. हमने लेसन नंबर 7 उसमें पढ़ा ही है possessive. तो this is possessive pronoun. तो what is possessive pronoun? A possessive pronoun is used to show that something belongs to someone. क्या है? possessive pronoun क्या है? It shows, a possessive pronoun is used to show that something belongs to someone. एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा. This bag is mine. किसका बैग है? मेरा. So mine. That car is ours. किसका कार है? हमारा. तो that car is ours. The pen is yours. सामने वाले व्यक्ति की है. So the pen is yours. This house is his. ये घर किसका है? उसका. His. All these are possessive pronoun. The notebook is hers. तो ये गर्ल की जगह यूज़ हुआ है तो उस लड़की का है. तो hers. That toaster is theirs. कि वो टोस्टर उन लोगों का है. theirs. तो आपने क्या देखा कि ये सारे पोसेसिव प्रोनाउन में पीछे s लगे हैं. his is used for boy. theirs यानी बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ हुआ है. एक बार और समझ लेते हैं. सो व्हाट इज़ दिस? क्या था? यस. के दिस बैग इज़ माइन. ये बैग मेरा है. सो पोसेशन. दिस बैग बिलोंग्स टू मी. इट इज़ अ पोसेसिव
pronoun. Second one is there, what? That car is ours. कि ये जो कार है वो हमारी है, हम लोगों की. So ours. The pen is yours. ये पेन मेरी नहीं है, सामने वाले की है. तो the pen is yours. ये आपकी पेन है. Second person. Now this house is his. Means our friend will be there. सामने वाला second person है और वो लड़का है. So his is used. This house is his. So beautiful bungalow is there, no? Next one. The notebook is hers. किसका notebook है? Girl का. It belongs to the girl. So the notebook is hers. That toaster is theirs. कि ये टोस्टर किन का है? उन लोगों का. So that toaster is theirs. Clear? So all this which we have studied, mine, ours, yours, his, hers, theirs, all are possessive pronoun. Means it is used to show that something belongs to someone. Now let's see further. All the pronouns written above in color are personal pronoun. यानी ऊपर जो भी लिखे थे, mine, ours, his, we, all these are personal pronoun. तो personal pronoun क्या होता है? Let's see. A personal pronoun is a pronoun that is related to a particular person. Personal pronoun क्या होता है? It is related to a particular. किसी एक खास व्यक्ति से रिलेट होता है. श्वेता, राज, नेहा, माइन, like this. It is personal pronoun. फिर से देख लेते हैं. A personal pronoun is a pronoun that is related to a particular person. कैसे? अब वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? Let's see. These pronouns are divided into the first person, second person and third person. How many? 3 types of pronouns are there. These pronouns are divided into the first person, second person and third person pronoun. ऐसे ही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना? तो चलो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए. अब फर्स्ट वन इज़ देयर फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? कि हम अपनी बात कर रहे हैं. अपने यानी आई. द फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग. यानी जो बोल रहा है. तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? आई शमा खान. तो मेरी बात हो रही तो मैं क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन. वैसे ही यहाँ पे आई एम बिलाल. तो बिलाल कौन है? बिलाल अपनी बात कर रहा है. सो बिलाल इज़ द फर्स्ट पर्सन. आई. फर्स्ट पर्सन समझ में आया? आई. वी गो टू स्कूल. तो वी में मैं और मेरे फ्रेंड्स, मैं उसमें इंक्लूड हूँ. दैट्स राइट इज़ वी. आई एंड माई फ्रेंड्स. सो मैं उसमें शामिल हूँ. सो इट विल कम वी. It will come in personal pronoun. Then the second one is there. Second person is the person being spoken to. यानी हम जो सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, that is the second person. Second person is the persons being spoken to. यानी हम जिससे सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ सेकेंड पर्सन. यू आर लेट नैना. तो हमने नैना से बात की. तो नैना इज़ द सेकेंड पर्सन. सो उसका क्या यूज़ होगा? यू. यू आर
लेट नैना। यू आर नूर्स कज़िन आरंट यू। तो यहाँ पे भी हम नूर से बात कर रहे हैं कि क्या आप नूर के कज़िन हो। तो वी आर टॉकिंग टू समवन के आप उसके कज़िन हो। सो यू, तो हमें क्या याद रखना है, यू प्रोनाउन किसके लिए यूज़ होता है, सेकंड पर्सन के लिए। क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं विद द थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होगा? थर्ड पर्सन इज़ द पर्सन्स बीइंग स्पोकन अबाउट, यानी उसमें मैं नहीं, मेरे सामने वाला व्यक्ति नहीं, मगर एनीवन एल्स, हम किसी और के बारे में बातें कर रहे हैं। सो दैट इज़ द थर्ड पर्सन। ही इज़ टेकिंग अ पिक्चर, तो इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है ना। सो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जब बात कर रहे हैं, दैट इज़ द थर्ड पर्सन। दे आर बेकिंग अ केक, क्या कर रहे हैं वो? दे आर बेकिंग अ केक। तो दे, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, सुरेश, रमेश, अली, एनीवन। तो दे आर थर्ड पर्सन, ही एंड दे। शी, वो भी थर्ड पर्सन में आएगा। इट ऑल्सो विल कम इन थर्ड पर्सन। आ रहा है ना समझ में? तो व्हाट इज थर्ड पर्सन? इज द पर्सन्स बीइंग स्पोकन अबाउट, कि जिसके बारे में बात हो रही है, दैट इज द थर्ड पर्सन। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द टेबल। एक टेबल से हम अच्छी तरह समझ लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा एंड व्हाट वी विल सी। नाउ हियर फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन इज हु इज स्पीकिंग। दिस वन, फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग, हु इज द स्पीकर, जो बोल रहा है, दैट इज द फर्स्ट पर्सन। तो सिंगुलर में क्या यूज़ होगा प्रोनाउन का, और प्लूरल में? तो सिंगुलर क्या है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग विच वी आर टॉकिंग एज वन, एक के बारे में बात हो रही है, दैट इज सिंगुलर नाउन। और अगर ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो दैट इज़ प्लूरल। अब सिंगुलर में कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ होंगे? आई हैव अ बुक। आई इज अ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। सो मी इज द फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, सो दैट इज ऑल्सो अ पर्सनल प्रोनाउन। नाउ इन प्लूरल फॉर्म क्या यूज़ होगा? वी वेंट टू स्कूल। तो वी, उसमें मैं शामिल हो और मेरे फ्रेंड्स भी होंगे सब साथ में। सो वी इज प्लूरल फॉर्म, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। द प्रिंसिपल प्रेज्ड अस, प्रिंसिपल ने हमारी तारीफ़ की, तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। द स्पीकर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, सो इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। दिस बैग्स आर आर्स, ये हमारे बैग किसके हैं? हमारे। आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट वन, सो इट इज़ फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, प्लूरल फॉर्म। आ गया ना समझ में? यस, एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। जो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, जो स्पीकर होता है, दैट इज़ द फर्स्ट पर्सन। नाउ अब सेकंड पर्सन का हम सीख लेते हैं। व्हाट इज सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन लिसनर, जो सामने सुनने वाला है, वो। मैं जिससे बात कर रही हूँ, सामने हमारा फ्रेंड या कोई होगा, मम्मी पापा, एनीवन, तो सामने वाली व्यक्ति है, दैट इज़ द लिसनर। और बोथ और सिंगुलर और प्लूरल, उसमें वही यूज़ होता है, क्या? यू। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यू आर लेट फॉर द क्लास, तो सामने वाले व्यक्ति कौन है? यू। यू आर ईशाज फ्रेंड्स। यू, तो ये प्लूरल में है, उसमें भी यू ओनली इज यूज्ड। दिस अम्ब्रेला इज योर्स, तो दैट इज सिंगल अम्ब्रेला, सामने वाली व्यक्ति की है, दैट्स इट इज यूज्ड योर्स।
तो सेकंड पर्सन में क्या यूज़ होगा? यू, पर्सनल प्रोनाउन में। वी गॉट आवर बुक्स, योर्स, योर्स व्हाट? आर विद द टीचर, कि ये कि हमें तो हमारी बुक मिल गई मगर तुम्हारी बुक कहाँ है? आर विद द टीचर। वी गॉट आवर बुक्स, योर्स आर विद द टीचर। नाउ दिस वॉज सेकेंड पर्सन जिसमें हमें यूज़ करना होता है यू। नाउ द थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या क्या यूज़ होगा? लेट्स सी। थर्ड पर्सन उसमें क्या आएगा? नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पोकन अबाउट। सिंगुलर में क्या आएगा और प्लूरल में क्या आएगा? लेट्स सी। ही हैज़ अ बैट, तो यहाँ पे लड़का है, सो इट इज़ यूज्ड ही प्रोनाउन। द बैट बिलोंग्स टू हिम, ये बैट उसका है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सो हिम। दिस आर ऑल यूज्ड फॉर मेल जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज़ होता है प्रोनाउन ही, हिम। द बैट इज़ हिज, उसका बैट है, तो दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मस्कुलाइन जेंडर हिज, और ये सब हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सी हैज़ अ कैलकुलेटर, तो शी प्रोनाउन किसके लिए यूज़ हुआ? थर्ड पर्सन गर्ल के लिए। द कैलकुलेटर बिलोंग्स टू हर, सो हर इट इज़ यूज्ड फॉर द गर्ल। द कैलकुलेटर इज़ हर्स, ये कैलकुलेटर उसका है, सो थर्ड पर्सन में गर्ल के लिए क्या यूज़ होगा? फेमिनाइन जेंडर के लिए शी, हर, हर्स। लुक एट द कैट, इट फेल एस्लीप, तो यहाँ पे एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज़ होता है? इट। लुक एट द कैट, इट फेल एस्लीप, तो प्रोनाउन इट कहाँ पे यूज़ होगा? फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, उसमें विच प्रोनाउन विल यूज़? लेट्स सी। दे हैव अ कार, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो दे वी विल यूज़। द कार बिलोंग्स टू देम, द कार बिलोंग्स टू देम, उनको बिलोंग करती है, सो देम प्रोनाउन वी हैव टू यूज़। द कार इज़ देयर्स, उनकी कार है, सो देयर्स इट इज़ अ प्लूरल विच इज़ यूज फॉर थर्ड पर्सन। सो प्लूरल में क्या क्या यूज़ होगा थर्ड पर्सन के लिए? दे, देम, देयर्स, ऑल दिस आर यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, चलो अब सी। अब हमने सेकेंड पर्सन में क्या सीखा था देख लेते हैं। यू एंड योर्स कैन बी बोथ सिंगुलर और प्लूरल, तो यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी। वैसे ही योर्स वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी होता है। प्रोनाउंस आर यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक जेंडर एज वेल, तो ये हमने सीखा भी आगे कि जो प्रोनाउंस है वो स्पेसिफिक जेंडर के लिए अलग अलग यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल कॉलम में देख लेते हैं कहाँ पे कैसे क्या यूज़ हो रहा है। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया तो दे ही दिया है, थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि वेयर जेंडर्स, किस जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा। तो फर्स्ट पर्सन होगा, उसमें बोथ मस्कुलाइन यानी मेल जेंडर, फेमिनाइन यानी फीमेल जेंडर, उसमें गर्ल, लेडी वो सब आएंगे। तो आई, तो यह आई एम टायर्ड, तो आई तो उसमें गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है, बोथ इज़ पॉसिबल। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई प्रोनाउन इज यूज्ड।
हेल्प मी विद द बॉक्सेस। तो यहाँ पे दोनों मस्कुलाइन फेमिनाइन पता नहीं चल रहा है तो बोथ फॉर्म इट विल कम द सेम। सेकेंड पर्सन में भी ऑल्सो इट विल बी यूज द सेम। आई एम टायर्ड। हेल्प मी विद द बॉक्सेस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है कि गर्ल इज़ देयर, मस्कुलाइन इज़ देयर और फेमिनाइन इज़ देयर। सो मी सबके लिए यूज़ होगा। द बॉटल इज़ माइन। तो बॉटल मेरी है तो मैं तो गर्ल भी हो सकती हूँ या बॉय भी। सो माइन प्रोनाउन विल बी यूज्ड। यू सेकेंड पर्सन शुड हेल्प रघु। तो यू इज़ यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, और वो मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। इज़ दिस बैग योर्स। क्या ये बैग आपका है? तो सामने वाली व्यक्ति गर्ल है या बॉय वो तो अभी हमें पता नहीं है। सो फॉर बोथ योर्स विल बी यूज्ड। वी वेंट टू मीट ग्रैंडमा। तो हम गए, तो हम में तो कोई भी शामिल हो सकता है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड इज नॉट देयर, सो वी प्रोनाउन विल बी यूज्ड। द डॉग रैन बिहाइंड अस। हम सबके पीछे डॉग पड़ा, सो अस प्रोनाउन इज यूज्ड। दिस टिकट्स आर आवर्स। ये टिकट हमारी है। सो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है अबाउट द जेंडर, सो आवर्स विल बी यूज्ड। नेक्स्ट वन, आप थर्ड पर्सन में हमें अच्छे से समझना है कि वेयर डिफरेंस इज़ देयर। कहाँ पे थर्ड पर्सन में किसका यूज़ कहाँ पे होगा। सो हियर इन द थर्ड पर्सन में जब सिंगुलर होगा, व्हेन सिंगुलर इज़ देयर प्रोनाउन और मस्कुलाइन जेंडर है, तो उसमें क्या यूज़ होने वाला है। तो फर्स्ट वन इज़ देयर, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पे ही मतलब लड़के के बारे में बात हो रही है, सो प्रोनाउन ही विल बी यूज्ड, और ये सिंगुलर फॉर्म में है। डोंट टेल हिम द न्यूज़ येट। तो ये भी लड़के को हम बता रहे हैं कि उसे नहीं बताना है, सो हिम प्रोनाउन इज़ यूज्ड। दिस इरेज़र इज़ हिज। हमें पता है हम उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हिज प्रोनाउन इज़ यूज्ड। तो सिंगुलर मस्कुलाइन जेंडर में कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ होंगे? ही, हिम, हिज। ही, हिम, हिज। नाउ फॉर सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर, विच प्रोनाउंस विल यूज? शी इज़ अ डांसर। क्या यूज़ हुआ? शी। हर मदर वॉज अ टीचर। तो हमें पता है हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हर मदर वॉज अ टीचर। दिस बैग इज़ हर्स। दिस बैग इज़ हर्स। सो फॉर फेमिनाइन इन सिंगुलर, what pronouns will use? She, her, hers. So all these for third person feminine gender we are using. अब neuter gender. What is neuter gender? That it does not tell about any specific gender. That can be both. So here, or we can say it is used for non-living things. So here it is a pick up the paper. It is on the floor. So when we are talking about non-living things, it is called neuter gender. तो neuter gender singular में what pronoun will be used? It. Pick up the paper. तो पेपर के लिए क्या यूज़ हुआ? It. It is on the floor. अब ये सब हुआ about the specific gender masculine, feminine and neuter जो singular form में थे। अगर वही plural form में होंगे तो क्या change हो जाएगा? They play football. So many people are there, third person, इसलिए they. These books belong to them. ये books उनको belong करती है,
So that's why them pronoun will be used. These books are theirs. ये books उनकी है. So all these are third person pronoun in plural form. तो क्या यूज़ होगा उसके लिए? They, them, theirs. Clear students? Yes. तो आपको याद रखना है कि what are pronouns? Pronouns are used for what? Yes, they are used in place of noun. वो noun को replace करता है, उसकी जगह हम उसको यूज़ करते हैं. तो उसमें बहुत सारे हमने पर्सनल प्रोनाउन सीखे. I, me, us, you, he, she, it, her, they, them, mine, ours, yours, hers, like this and so on. तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थे. सो इफ़ आप ऑन द रेगुलर बेसिस आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38, 39 एंड 40 वो रीड करते रहिए सो दैट नो कन्फ्यूजन इज़ देयर. अब हम एक एनिमेटेड वीडियो भी देख लेते हैं ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगे और आपको और मज़ा आए. तो लेट्स सी द एनिमेटेड वीडियो बेस्ड ऑन pronouns. Personal pronouns. The words I, you, she, he, it, we, and they are personal pronouns. These pronouns replace a noun or nouns in the naming part of a sentence. For example, that man has a mustache. He has a mustache. The words me, you, her, him, us, and them are also personal pronouns. These pronouns replace a noun or nouns in the telling part of a sentence. For example, the salesman happily sold the robot to the man and the woman. The salesman happily sold the robot to them. The pronouns you and it can be used anywhere in a sentence. You is used for both singular and plural nouns. For example, Ricky said, "You are intelligent, Nikki." The coach said, "I have faith in all of you." It is used for animals and inanimate things. For example, a woman walks with a dog. The dog has a bushy tail. A woman walks with a dog. It has a bushy tail. The woman gives the dog a basket. The dog carries the basket. The woman gives the dog a basket. The dog carries it.